اچھا دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السوال السابع ہو چکا تھا نا. السوال الثامن والتاسع والعاشر، یعنی 8واں 9واں 10واں سوال. آگے جو ہے علماء حرمین شریفین کے علماء کرام نے دیوبند کے علماء سے 8واں 9واں 10 3 سوال کیے، لیکن ان تینوں کا ایک ہی مسئلے سے تعلق رہتی ہے، اسی وجہ سے اس کتاب میں جو ہے تینوں کو ایک ہی میں جمع کر لیا. سوال پہلے آپ لوگ سن لیتے ہیں، جمع پھر بعد میں پڑھ لیتے ہیں. سوال پہلا یہ ہے کہ پہلے آپ لوگ یہ بتاؤ کہ چار ائمہ میں سے 4 ائمہ کا کسی بھی امام کا اصول اور فروع میں جو ہے تقلید کرنا کیسا ہے، درست ہے یا درست نہیں ہے. درست جائز اور جائز کا سوال، ناجائز کا سوال ہو رہا ہے. تقلید کا یعنی ائمہ اربعہ میں سے کسی بھی امام کا تقلید کرنا جو ہے وہ درست ہے یا درست نہیں ہے. پہلا سوال ہو گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اچھا اب یہ تقلید کرنا جو ہے وہ کیا ہے، تقلید کرنا جو ہے یہ تقلید کرنا جو ہے یہ واجب ہے یا مستحب ہے. یعنی اگر یہ تقلید کرنا درست ہے تو پھر یہ بھی بتا دے دوسرا سوال کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ تم لوگ کس کے امام، تو آپ لوگ کون سے امام کی تقلید کرتے ہو، آپ لوگ کون سا امام کی تقلید کرتے ہو. تو یہ 3 سوال جو ہے یہ چونکہ ایک ہی مسئلے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سارے تقلید ہی کے، تو اسی وجہ سے امام احمد خلیل اللہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں کو ایک ہی میں جمع کر دیا. اچھا آپ لوگ اب وہ دیکھ لیں. السوال الثامن والتاسع والعاشر، هل يصح لرجل، کیا صحیح ہے آدمی کے لیے ان يقلد احدا من الائمة الاربعہ فی جمیع الاصول والفروع ام لا، کیا صحیح ہے کسی آدمی کے لیے کہ وہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کی بھی تقلید کرے پورے یعنی تمام اصول اور فروع میں، ام لا یا صحیح نہیں ہے. وعلى تقدیر الصحت هل هو مستحب ام واجب، اور یہ بھی بتا دو کہ یہ کیا کرنا تقلید على تقدیر الصحت هل هو مستحب، یہ جو اگر یہ کیا ہو یعنی تقدیر اندازہ اگر یہ صحت کی تقلید پر ہو، یعنی اگر صحت کی تقدیر پر ہو، مطلب یہ ہے کہ فرض کرے اگر یہ صحیح ہے، یہ تقلید کرنا صحیح ہے. پہلا سوال آپ نے کہہ دیا کہ صحیح ہے، حل ہوا مستحب ام واجب، تو دوسرا یہ بھی بتا دو کہ یہ مستحب ہے یا واجب. ومن تقلدون من الائمة فروعا واصولا، اور آپ لوگ جو ہے کس امام کے تقلید کرتے ہو اصول اور فروع میں. تو دیکھو میں سیدھا جواب تینوں کا پہلا تو دے دیتی ہوں، باقی تفصیل کی طرف جاتے ہیں. پہلا سوال یہاں پر جو دے دیا گیا ہے، پہلے سوال کا جواب دیا ہے کہ اصول اور فروع میں ائمہ اربعہ یعنی امام ترتیب کے ساتھ جو ہے عمروں کے لحاظ سے بتا دیتی ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے ہیں، اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے دوسرے نمبر پر ہے، تیسرے نمبر پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، چوتھے نمبر پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے. یہ ہماری 4 ائمہ اربعہ ہے. ان میں سے کسی کا بھی تقلید کر لے تقلید جائز ہے. ہم شافعی المسلک پر برا بلا نہیں کہتے، ہم جو ہے کیا ہوتے ہیں حنفیہ کو برا بلا نہیں کہتے، ہم حنابلہ کی مسلک کو ہم برا بلا نہیں کرتے. ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سارے برحق ہے. جو شافعی المسلک ہے وہ بھی اپنے آپ جو ہے صحیح ہے، اور جو حنابلہ مسلک ہے وہ بھی اپنے آپ صحیح ہے، اور جو ہے وہ کیا ہے مالکیہ مسلک کیا ہے وہ بھی اپنے آپ صحیح ہے، اور ہم خود بھی اپنے آپ صحیح ہے. تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل ائمہ اربعہ میں سے کسی کی بھی اصولاً اور فروعاً تقلید کرنا جو ہے وہ صحیح ہے. دوسرے نمبر پر سوال یہ ہے یہ تقلید کرنا جو ہے یہ واجب ہے، تقلید کرنا جو ہے وہ واجب ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم تقلید کرتے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں.
तकलीद जो है हम ज़्यादा नहीं जाते, मैं तकलीद की तरफ जो है वो ज़्यादा नहीं जाऊँगी। इंशाल्लाह आप लोग जो है ये तो इल्म में ये तकलीद का बहस नहीं आता, इस पर जो है बहुत बड़ी किताबें लिखी है। अगर आपको लोगों का मौका मिले तो फिर जो है वो क्या है यानी अगर आप लोगों ने आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी तखस्सुस फिल इफ्ता की, तो फिर जो है आप लोग जो है अल-बहस अत-तासिअ मसअलतुत तक़लीद व तहज़्ज़ुब, ये जो है उसूलुल इफ्ता व आदाबुहु में एक जो है टॉपिक है बहुत बड़ा अरबी में, तो इंशाल्लाह आप जो है वहाँ पर ये करें। मैं थोड़ा बहुत जो है बता देती हूँ। तकलीद जो है वो कुरान से भी साबित है। तकलीद करना कुरान से किस तरह साबित है कि जब एक इंसान जो है यानी आवाम के लिए तकलीद करना जो है वो वाजिब है। चारों इमाम में से किसी एक इमाम की तकलीद करना चाहिए। यानी पहले तो ये बता लेती हूँ कि ये तकलीद करना चाहिए ये क्या है, वाजिब इसी वजह से है क्योंकि आम लोग जो है वो तो इस बात का इस्तिताअत नहीं रखते हैं कि असली मकसद से यानी कुरान और हदीस से मसाइल को निकाले फिर जो है क्या कर ले, उस पर अमल कर ले। जाहिर सी बात है ये तो उनके लिए मुश्किल बात है बल्कि नामुमकिन है। तो इसी वजह से वो तो किसी की तरफ रुजू करेंगे ना, तो उस किसी की तरफ क्या करेंगे, रुजू करेंगे। और यही बात कुरान में आया है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि तुम लोग पूछो अहले ज़िक्र से इल्म इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते। तो इस और यही जो है वही इसी का बात को तो हम तकलीद कहते हैं। और यही इस्तिलाही मानी जो है वो तकलीद का है कि तकलीद जो है वो किसे कहते हैं, आप किसी और की क्या करो, फिर भी करो, आप कुछ भी नहीं जानते, आप हदीस और कुरान से जो है बराह रास्त जो है वो नहीं निकालते हैं, बल्कि आप जो है वो क्या कर लेते हो, किसी पर भरोसा करके उसके पीछे उसी की बात मान लेते हो, तो उसको कहते हैं तकलीद करना। तो इसी वजह से तकलीद करना जो है वो क्या है, जायज़ है। और ये जो है ये हम नहीं कह रहे बल्कि जो है क्या कर रहे हैं, ये हम सिर्फ नहीं कहते बल्कि ये तमाम क्या ये सहाबा कराम से भी साबित है। क्या है, सहाबा कराम से भी जो है वो क्या साबित है, हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायत कसीर इब्न हिशाम की रिवायत में आता है कि में से एक मस्जिद इमाम अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मस्जिद के वालों दिमाश्क में एक मस्जिद के पास आया, मैंने देखा कि एक आदमी जो है वो क्या बैठा हुआ है, बूढ़ा अधेड़ उम्र का आदमी जो है वो बैठा हुआ था। वो सहाबा कराम में से एक सहाबी था और उनके इर्द गिर्द जो है वो क्या होता है, वो क्या लगा हुआ है, उसके इर्द गिर्द जो है एक हल्का लगा हुआ है और वो एक ऐसे जवान था अकहलुल आइनैन कि उसकी सुरमीली आंखें यानी सुरमगीनी आंखें थी, बर्राक़ सनाया, और उनके जो है वो क्या थे, चमक रहे थे। क्या थे उनकी ये दो सामने वाले दो दांत जो है सनाया वो चमक रहे थे। कुल्लमा इख्तलफू फी शैइन रद्दूहु इलल फता, जब भी लोगों के दरमियान दमिश्क वालों के दरमियान इख्तिलाफ आता था तो उसकी तरफ लौटाते थे। काला वो राय फरमाते कुल्तली जली से, मैं अपने साथी को कहा मन हाज़ा, ये कौन है, काला हाज़ा मुआज़ इब्न जबल, ये मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो उससे भी मालूम होता है कि यानी एक देखो वो सब अपनी बातें सारी बातें जो है उसी से लेते थे, उसी से बराह रास्त लेते थे। और हम जो है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो हमारे पास है नहीं कि हम उसे बराह रास्त, इसी वजह से हम पर जरूरी है कि हम उसकी किताबों से जो है वो मुझसे बात तो एक हो गई ना, बात तो एक हो गई। आप किसी का बराह रास्त जो है वो क्या कर ले, फतवा ले ले, या उसका रिटन फॉर्म में फतवा ले ले, बात तो एक ही है ना। तो हम रिटन फॉर्म में इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करते हैं और तभी ताबीन जो है उस सहाबा कराम की जो है वो क्या थे, बराह रास्त जो है वो तकलीद करते थे। तो इसी वजह से जो है ये इसमें तो कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर दूसरा सवाल ये है, दूसरा सवाल इंसान के जहन में आता है कि तो फिर ये चारों ही मजहब क्यों है, ये चार क्यों है, पांच क्यों नहीं है, चार है पांच क्यों नहीं। तो इसी वजह से कि हो ये क्या है, इसके बारे में इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत उम्दा बात किया है। वक़फ़ अत-तक़लीद फ़ी अल-अमसार अंद हाउलाई अल-अर्बअ व दरस अल-मुक़ल्लिदून लिमन सिवाहुम व शद्द अन-नास बाब अल-ख़िलाफ़ व तुरक़हु लिमा कथरा तशाअब अल-इस्तिलाह फ़ी अल-उलूम। कहते हैं कि ये चार इसी वजह से है कि उन्होंने प्रॉपरली पूरे इंतजाम के साथ तमाम मसाइलों को अपने अपने मज़ाहिब में जमा किया।
इनके अलावा भी और भी मज़ाहिब थे जो कि बरहक थे, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंच सके। वो हम तक नकल मुतवातिर के साथ, नकल मशहूर के साथ हम तक नहीं पहुंच सके। जैसे लैस हो गया, इस तरह जो है वकी एक फ़क़ीह था, उसका भी अपना मजहब था, उनका बरहक मजहब था, लेकिन उनका जो है चूंकि प्रॉपरली निज़ाम तरतीब नहीं था, तो इसी वजह से जो है हमारी जो है किस तक जो है वो नहीं पहुंच सके। तो इसी वजह से जो है वो क्या करे, और ये जो है पूरी किस चीज़ के साथ हम तक जो है ये बात पहुंचे, और ये चार ही मज़ाहिब की निज़ाम और तरतीब की ज़बत की वजह से जो है हम तक जो है सखावत के साथ सिक्का रावियों के जरिए से हम तक पहुंचे। तो इसी वजह से ये चार ही मजहब जो है अभी बरहक है, इसके अलावा कोई भी मजहब बरहक नहीं है। ये तो दूसरे सवाल का जवाब हो गया। तीसरा आखिरी सवाल ये है कि जब आप कहते हो कि तीनों चारों के मजहब की चार ही बरहक है, तो फिर क्यों ना चारों की तकलीद कर ले, फिर क्यों ना चारों की तकलीद कर ले? तो इसका जवाब ये है कि चारों की तकलीद हो ही नहीं सकती। फिर इसमें इंसान की ख्वाहिशी नफ्स लाजिमात है, ख्वाहिशी नफ्स लाजिमात है। वो किसी तरह कि आप अगर इनमें से एक की तकलीद करेगा तो फिर जो है आप हर मजहब से आप, जाहिर सी बात है उनमें से बाज, हर मजहब में ऐसा होता है कि बाज मसाइल में उन्होंने नरम फतवा दिया है और बाज में सख्त अल्फाज दिए, सख्त फतवा दिया है। अगर आप ऐसा करेंगे कि एक शाफिल मसलक से जो है आसान व मसला निकालेंगे और फिर हनफी की तरफ जाएंगे, फिर उसमें भी आसान ढूंढ कर आसान व मसला निकालेंगे, फिर उसमें जो है फिर मालिकिया की तरफ जाएंगे, उसमें जो आसान फतवा दिया है वही निकालेंगे और मुश्किल छोड़ेंगे। फिर तीसरे चौथे मजहब की तरफ हो, हनाबिला की तरफ जाएंगे, फिर उसमें भी आसान मसला निकालेंगे। तो फिर तो ये तो तकलीद नहीं हुआ ना, ये तो तकलीद नहीं हो गया ना, ये तो फिर जो है ये तकलीद तो हो गया, लेकिन अपनी नस्ल की तकलीद हो गया, शरीयत की तकलीद नहीं हो गया। तो इंसान जो है फिर वजूब, जवाज, तहलील और तहरीम, फिर इसमें जो है वो क्या करेंगे, इसमें जो है ख्वाहिशी नफ्सी का शिकार होगा। तो इसी वजह से इन चारों में से सिर्फ एक तकलीद करना होगा, चारों की तकलीद नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता हम तो मना तो नहीं करते, तो इस वजह से हाँ अलबत्ता अगर कहीं बाज़ ऐसे मसाले होते हैं तो खुद हमारे हनफी मसलक जो है वो मालिकिया के उस पर फतवा दे देते हैं। जैसे जो है वो मंगनी के बाद, अगर किसी का मंगनी के बाद नहीं, निकाह के बाद जो है अगर किसी का, क्योंकि हमारे मंगनी में भी निकाह होता है ना, तो इसी वजह से निकाह के बाद अगर क्या होता है, बगैर दुखुल के या दुखुल के साथ जो है किसी का शौहर गुम हो गया, फिर जो है वो नहीं रह रहा है, फिर वो नहीं मिल रहा था, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो फिर इसमें हनफिया का मसला क्या है कि 80 साल एक होने, यानी जितने जो है वो क्या करेंगे, वो अपने सालगिरह गुजारेंगे। मतलब ये है कि हर साल गुजारेंगे यहाँ तक कि 120 साल आ जाए, तो फिर वो तो इंसान जो है बूढ़े हो जाते हैं, फिर दोबारा दूसरी शादी की क्या जरूरत होती है, फिर तो कब्र की तरफ तैयारी होगा ना। तो इस पर ये चूंकि सख्त मसला है, तो इसी वजह से जो है यहाँ पर मालिकिया की कौल का फतवा दिया है। हमारे मुतकद्दिमीन, मुताखिरीन और मुतकद्दिमीन सब ने जो है वो फतवा जो है फिर उस पर दिया है, मालिकिया के मसलक पर जो है वो फतवा दिया है कि 4 साल के बाद जो है फिर जायज़ है, जबकि अदालत के साथ बातचीत हो जाए। सही हो गया। तो इसी वजह से जो है वो क्या है, हम उसको मुतलकन माने, लेकिन चूंकि इसमें इंसान की ख्वाहिशी परस्ती लाजिम आती है, तो इसी वजह से जो है वो क्या होता है, ये लाजिम होता है। अच्छा, यहाँ पर आप 2 बात जान लें। पहली बात ये जान लें कि मैंने जवाब में क्या कहा। पहले जवाब है कि उसूल और फुरूआ में जो है हम किस चीज़ की तकलीद करते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। हालांकि बिल्कुल अल-मुहन्नद और अल-मुफन्नद की शुरू में हमने ये बात पढ़ी थी कि उसूल में हमने ये बात पढ़ी थी कि फुरूआ में हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करते हैं, और उसूल में इमाम अबू मंसूर मातुरिदिया की तकलीद करते हैं। अब यहाँ पर आप दोनों कह रहे हैं कि उसूल और फुरूआ दोनों में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, तो इसका जवाब ये है कि वो शुरू वाली बात में जो है वो उसूल का मानी कुछ और था, और यहाँ पर उसूल का मानी कुछ और है। वहां पर उसूल का मानी था अकाइद, क्या अकाइद, अकाइद था यानी अकीदा था, और यहाँ पर उसूल का मानी ये नहीं है, बल्कि यहाँ पर मुराद ये है, फुरू से मुराद इज्तिहादी मसाइल, फुरू से मुराद जो है वो क्या है, इज्तिहादी मसाइल है, और उसूल से मुराद जिन इज्तिहादी मसाइल के लिए जो कवायद और ज़वाबित मुकर्रर की है, इससे मुराद उसूल है।
तो हम तो उसूल और फुरू में दोनों में जो है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तकलीद करते हैं ना, तो इसी वजह से जो है वो क्या करते हैं, उसूल से मुराद जो है यहाँ पर उसूल अकायद वाला उसूल मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है वो इज्तिहादी मसाइल के लिए जो मसाइल इस्तिंबात के लिए जो कवायद और क्या कर लिए गया है, वही जो है इससे मुराद है। अच्छा, यहाँ पर एक और इश्काल होता है, वो जो है जवाब पर होता है। जवाब पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल पढ़ेंगे और साथ में जो है उस इश्काल को भी पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी जो है अगर हम शुरू करेंगे उस सवाल को, वो थोड़ा सा तफसीली है, तो फिर जो है क्या करेंगे, ऐसा ना हो फिर ज़्यादा आप लोगों का वक्त निकल जाए। तो फिर अपने हमारा उसूल है क्या, नो वेट नो लेट। तो इसी वजह से जो है हम इतने ही काफ़ी जो है समझते हैं, आप लोग इसको याद कर ले अच्छी तरह। बाकी जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल अगर ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा इंशाल्लाह इस यहाँ से जो है जारी करेंगे। कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले, वरना इसी पर इक्तिफा करते हैं। कोई सवाल है? नहीं है, चलो फिर ठीक है।